अलायंस क्लब ऑफ रॉयल बंगाल ने विश्व परिवेश दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिणदारी गोलाघाटा में वृक्षारोपण का कार्य किया। इस अवसर पर उपस्थित हुए विशेष अतिथि स्थानीय वार्ड पार्षद पार्थो वर्मा, चेयरमैन इन काउंसिल वार्ड नंबर 35, मुख्य अतिथि राधा सोमानी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अलायंस को फाउंडर कमल लखोटिया, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सरिता बर्मन, एसपी सोमानी एवं कई अतिथिगण। कार्यक्रम में सबने अपना अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि पेड़ को बचाना ही हमारा मूल्य उद्देश्य है। साथ ही सभी ने वृक्षारोपण का कार्य किया। आइए देखिए विशेष। आज के परिवेश दिवस है उपलक्षे এই যে অ্যালায়েন্স ক্লাব রয়্যাল বেঙ্গল রে এই যে উদ্যোগ নিয়েছে কি বলবেন? না, আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5 জুন। আমি অ্যালায়েন্স ক্লাব অফ রয়্যাল বেঙ্গলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওনারা আমার এই ওয়ার্ডে 35 নম্বর ওয়ার্ড সাউথ দমদমের এটা এই পার্কটাকে ওনারা পছন্দ করেছেন। এখানে 100টা গাছ আজকে ওনারা লাগাচ্ছেন। এই মুহূর্তে এটা বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি কাজ হিউম্যান বিং এবং আদার যে স্পিসিস আছে তাদের জন্য। কারণ আমরা সবাই বিভিন্ন সময় এই পলিউশন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি, অনেক কিছু বলি, কিন্তু কাজের কাজ যেটা যে এই গাছপালা লাগানো, সেই কাজটাকে আমরা কিন্তু নেগলেক্ট করি। কিন্তু আজকে চারিদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে শুরু করে যা পরিবেশের যা অবস্থা, এই যে কিছুদিন অন্তর অন্তর দেখছেন এত বড় বড় ঝড় বৃষ্টি আসছে, সমস্ত কিছু হচ্ছে। আজকে কোথাও কোথাও পাহাড়ি অঞ্চলে ল্যান্ডস্লাইড হচ্ছে একটার পর একটা। এই সব কিছু কিন্তু আমরা মানে উইদাউট এনি প্ল্যানিং আমরা গাছপালা কেটে আমাদের হ্যাবিটেশন বাড়াচ্ছি। ফলে তার যা পরিস্থিতি হওয়ার, প্রকৃতিও কিন্তু পাল্টা তার প্রতিশোধ আমাদের উপরে বিভিন্নভাবে নিচ্ছে। তাই জন্য আগামী দিনে যদি আমাদের বেঁচে থাকতে হয় সুস্থ স্বাভাবিকভাবে, আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে যদি আমাদের একটা খুব ভালো জায়গা দিতে হয়, পরিবেশ দিতে হয়, তাহলে আজকে থেকেই আমার মনে হয় এই কাজ করা দরকার। আমি আরও একবার অল অ্যালায়েন্স ক্লাব অফ রয়্যাল বেঙ্গল যারা আছেন তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। ওনারা সারা বছর ধরে নানা রকম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস করেন, তার মধ্যে আজকের দিনে এই গাছ লাগানোর কাজ ওনারা করছেন। আমি ওনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি একটা ঠিকই বলেছো, মানুষ একেবারে এখন পরিবেশ নিয়ে অবিবেচক, যে জন্য পরিবেশের এই অবস্থা। তো কি বার্তা দেবে মানুষকে, কি করা উচিত? না, বার্তা একটাই, ওই যে আমি বললাম যে আমরা প্রায় সবাই জ্ঞান পাপী, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল আমরা সবাই জানি। সেটা নিয়ে সবাই ঘন্টার পর ঘন্টা চায়ের দোকানে আমরা আলোচনা করে কাটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কাজের কাজ যেটা যে একটু উদ্যোগ নিয়ে গাছপালা লাগানো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে গাছপালা যাতে না কাটা হয়, এটাই একটু মাথায় রাখার। তবে আমার মনে হয় মানুষ অনেকটা কনসাস হয়েছে। এখন বহু বাড়িতে আমি দেখি তারা গাছপালা লাগাচ্ছে নিজেদের পছন্দ মতো, সেটা মানে বিউটিফিকেশনের জন্য হোক আর যাই জন্য হোক তারা লাগাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা এনাফ নয়। সেটা করতে গেলে আমাদের এই ধরনের বড় উদ্যোগের দরকার। যেভাবে যথেচ্ছ হারে আমরা গাছপালা কাটছি, আরবানাইজেশন যেভাবে বাড়ছে, তাতে আমাদের মাথায় এটা রাখতে হবে এই ধরনের উদ্যোগ একটা খুব বড় উদ্যোগ, যেটা অ্যালায়েন্স ক্লাব অফ রয়্যাল বেঙ্গল এবং ওনারা করছেন। আমার ওয়ার্ডে 100টা গাছ লাগাচ্ছেন। গাছ ওনারা লাগাবেন, আমি ওনাদেরকে কথা দিয়েছি গাছগুলো যাতে ঠিকমতো বড় হয়। গাছ লাগালাম, প্রোগ্রাম করলাম, আপনারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলেন, তাতে হয়তো হাততালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আলটিমেট কাজের কাজ কিছু হবে না। এটা হচ্ছে গাছগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যদি আমি পুরোপুরিভাবে বড় করে তুলতে পারি, তখনই বোধহয় এই প্রোগ্রামের সাকসেসফুল 100% হবে। धन्यवाद। आज ये पर्यावरण दिवस पर रॉयल बंगाल ने जो 100 पेड़ लगाए गोलाघाट पार्क में, बहुत ही सुंदर जगह और बहुत ही बड़ा पार्क है, और यहाँ के काउंसिलर पार्थदा ने इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी ली है। ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि जनरली लोग पेड़ लगा देते हैं पर गाय खा जाती है या मर जाते हैं, केयर नहीं होती उनकी। परंतु उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो हमें और उम्मीद बन गई है कि आगे भी हम ये काम और कर सकते हैं। काउंसलर साहब जब खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं तो अविश्वास की बात ही नहीं है। और अलायंस क्लब ने जिम्मेदारी ली है इस पार्क के ब्यूटिफिकेशन की, जो कि बहुत ही हमारे अपने लिए बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा पार्क सुंदर तरीके से बनाया जाएगा, सुंदर उसका पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और ब्यूटिफिकेशन होगा। तो आज सुबह भी हमने पर्यावरण दिवस पे पौधे लगाए थे, और मेरा कहना यही है कि सिर्फ आज ही नहीं, पूरे 3-4 महीने बारिश का सीजन है, कोई भी पेड़ लगा सकता है, कितने भी पेड़ लगा सकते हैं, जितने लगाए कम है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेड़ों की, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया इसके कुप्रभाव को झेल रही है। थैंक यू सो मच। आज 5 जून पर्यावरण के आज जिस इतने महत्वपूर्ण दिन जो आज रॉयल बंगाल की रानी दुर्गा ने जो हिम्मत की है
और यहाँ के काउंसलर पार्षद जी ने जो इतना बढ़िया पार्क हम लोग को बताया दिखाया है, जिसमें 100 पेड़ लगा रहे हैं हमारे रॉयल बंगाल, एक बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये लगी कि उन्होंने वचन दिया है कि मैं इन 100 पेड़ों को आगे इसका पालन पोषण करके इनको बड़ा करके दिखाऊंगा। और ये पार्क ऐसी जगह पे है जैसे आती जाती गाड़ियां कहीं भी रुक सकती हैं और आके हम देख सकते हैं कि हमारे पेड़ जो लगे थे वो कैसे लगे थे। जन्म सब दे देते हैं, लेकिन पालन पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उनकी ये बात सुन के, पार्षद जी की बात सुन के हम लोग में इतना जोश आया कि हम लोगों ने बोला है इतना सुंदर पार्क रास्ते में है तो हम लोग इसको ब्यूटिफिकेशन का जिम्मेदारी ले लेते हैं। और पार्षद जी से मैंने विश्वास दिलाया कि पार्षद जी अब जब भी कुछ याद करोगे और बोलोगे कि यहाँ ये चीज करनी है, हम लोग को ये चीज की जरूरत है, तो हमारा अलायंस सिर्फ रॉयल बंगाल नहीं, हमारा पूरा अलायंस तैयार है इस काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। साथियों को नमस्कार। हम सभी यहाँ इस अवसर को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं पर्यावरण के मुद्दे पर अपने भाषण के माध्यम से पर्यावरण में हो रहे नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता लाना चाहती हूँ। पर्यावरण वो प्राकृतिक आवरण होता है जो हमें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि हमारा स्वास्थ्य और प्राकृतिक वातावरण दिन प्रतिदिन गिर रहा है और प्रदूषण एक दानव का रूप ले रहा है जो प्रत्येक जीवित जीवों को प्रभावित कर रहा है। जीवन को सुखी और स्वस्थ तरीके से चलाने के लिए हमें एक स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण की जरूरत होती है। पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा सभी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज पर्यावरण पर भाषण देने का मुख्य कारण आम जनता के बीच में वातावरण की स्वच्छता के स्तर में गिरावट के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही पृथ्वी पर स्वस्थ और प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता को प्रदर्शित करना चाहती हूँ। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि पर्यावरण की सुरक्षा में भागीदारी करें। धन्यवाद।